بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 24 اپریل اور دن ہے جمعرات کا. یہ میرا پہلا ولاگ ہے آج کی تاریخ کا. تو خبریں بہت ہیں کیونکہ اب ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی سیاست میں، اور وہ آیا ہے وایا نئی دہلی. اور نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم، انہوں نے کل بہت بڑے بڑے اعلان کیے ہیں اور پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. اور سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ساتھ آبی جنگ چھیڑ دی ہے اور ہمارے تمام پانی جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. اور یہ ایک غیر معمولی اقدام ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. نریندر مودی کون ہے؟ نریندر مودی جناب نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی اور خاندانی دوست ہیں. ان کے گھر آنا جانا ہے. جاتی عمرہ آتے ہیں، بغیر ویزے کے آتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نریندر مودی کون ہیں؟ وہ کہاں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی بچوں کی شادی میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا اور ہم نے سب نے دیکھا. وہ دوست نواز شریف صاحب کے وہ پاکستان پہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں اور وہ پاکستان پہ جنگ مسلط کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں، سمدھی وزیر خارجہ ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. یہ سب کچھ ان کے دور میں ہو رہا ہے. اور اگر ان خاندانوں کے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم اور بھائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ اس طرح کے اقدامات کریں اور الزام لگائیں پاکستان کی فوج پہ کہ یہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے یہ پہلگام کروایا ہے اور سرحد پار سے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ فوج تو مکمل طور پر جنرل عاصم منیر صاحب جو فوج کے سپہ سالار ہیں وہ تو مکمل طور پر اسی خاندان کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں اور چولی دامن کا ساتھ ہے اور درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی. اس حد تک ان کی گوڑھی یاری ہے. اور انصار عباسی کے بقول کہ یہ دو طرفہ افیئر چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا. یہ ہے سوچنے کی بات. 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا پہلگام اور بھارت مسلسل پروپیگیٹ کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور 24 گھنٹے گزر گئے، پابندیاں عائد کیے ہوئے پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی دھمکیاں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن نواز شریف صاحب بھی خاموش، شہباز شریف صاحب بھی خاموش اور مریم صاحبہ بھی خاموش، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش، ان کا سوشل میڈیا بھی خاموش. وہ سوشل میڈیا جو فوج کے خلاف اس وقت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا اور پاکستانی فوج کے شہیدوں کا مذاق اڑا رہا تھا اور نواز شریف صاحب اس وقت گالم گلوچ کر رہے تھے، لیکن آج بالکل مکمل طور پر خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. یہ ہے اصل کوشچن جس کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر یہ لڑائی چھڑتی ہے، کشیدگی بڑھتی ہے تو اس خاندان کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں اور ان خاندان کے اقتدار کو کتنا فائدہ. بالکل سادہ سا سوال ہے جی کہ یہ اطلاعات تو آ ہی رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کے درمیان کوئی مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اور معاہدے کے کوئی قریب بھی پہنچ چکے تھے، پھر معاملات خراب ہو گئے. اس کے بعد امریکہ سے سندیسہ آ گیا کہ جو جیک برگمین نے جو جا کے رپورٹ سبمٹ کی، اس کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. یہ سب کچھ ہوا. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں اس طرف جا رہی تھیں تو یہ اچانک یہ کام کیوں کیا گیا اور فوج کو اس معاملے میں کیوں الجھایا جا رہا ہے اور پورے پاکستان کی سالمیت کو کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ یہی ہے اصل سوال. یہ جواب تلاش کریں جناب ہمارے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو تلاش کرنا چاہیے، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا صاحب کو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے اور ہمارے ڈی جی ISI کو جواب تلاش کرنا چاہیے. ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے گہرے یاری، دوستی، پکی خاندانی، تحائف کا تبادلہ، ویزا فری سروس اور پھر یہ سب کچھ کیا گیا. تو بہرحال آج اس بارے میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے جی، پاکستان اسلام آباد میں ہوگا اور اس میں
तमाम जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो ज़ाहिर है नून लीग की ही होगी, उसमें पीपल्स पार्टी तो उस कैबिनेट में है ही नहीं। तो ये वही बात है, जाती उम्रा होगा, जाती उम्रा की फैमिली होगी और इधर से सिपा सलार होंगे और उधर से जनाब नेवल चीफ होंगे जिनको ऑलरेडी एक्सटेंशन दी जा चुकी है 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। एयर चीफ होंगे, उनको भी गैर मामूली तौर पे एक्सटेंशन दी जा चुकी है उसी गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। और उनके भाई जो हैं वो फॉर्म 47 के कौमी असम्बली में रुकन हैं। तो देखते हैं कि आज क्या फैसले किए जाते हैं और इस मामले को डिफ्यूज़ करने में जनाब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी जो हैं वो किस हद तक अपना काम करती हैं, नरेंद्र मोदी को फ़ोन करती हैं या खुद जाएंगी या क्या करेंगी, ये ज़रा अभी देखने की बातें हैं। अगला जो क्वेश्चन है जी वो ज़रा पाकिस्तान की दाखिली सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है वो आज, क्योंकि इस वक्त ये भी बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें देखना है कि किस किस को बुलाया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता वज़राए आला को, या फिर ये मुकम्मल तौर पर बंद कमरे में दो ख़ानदानों के बीच में ही ये सारे मामला तय किए जाएंगे, ये भी आज तय होगा। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और उसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमारे वज़ीर दिफा जो कि फॉर्म 47 के हैं, जिनको सुबह जगा कर दिया जाता है फॉर्म 47 और वो भी जाली कि जनाब जाएं और मौजे करें और वो फिर वज़ीर दिफा बन जाते हैं, वो भी खामोश हैं इस सिलसिले में। अभी तक उन्होंने भी कोई हरकत नहीं फरमाई, भारत को मुंह तोड़ जवाब अभी तक नहीं दिया। इसी तरीके से हमारे वज़ीर दाखिला जो कि बलूचिस्तान को कहते हैं कि SHO की मार हैं और बलोचियों पे, पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान की शहरियों पे बहुत ज़्यादा रहते हैं वो हमलावर, और इस्लामाबाद का कत्लेआम हमारे सामने है, वो भी खामोश हैं। उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने भी राजनाथ सिंह को भी जवाब नहीं दिया और अमित शाह को भी जवाब नहीं दिया। राजनाथ सिंह को जवाब देना था ख्वाजा आसिफ साहब ने और अमित शाह को जवाब देना था नकवी सरकार ने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल सन्नाटा है। उसके बाद आते हैं अगली हुकूमत के तर्जुमान कौन है, अता तारड़ साहब। वो जजेस को बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं और मीडिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। DGI-SPR फौज के तर्जुमान वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक सरकारी बयान कोई नहीं आया, क्योंकि वो इनडायरेक्टली तो व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बराह रास्त कोई बयान नहीं आया और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, जैसा कि इंतशारी टोला, फसादी टोला, शैतानी मीडिया, डिजिटल दहशतगर्दी, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो अलकाबात से नवाजा जाता था हमें पाकिस्तान मीडिया को। तो ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन अभी तक सब खामोश हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की सियासत में जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पर है। कल आलिया हमजा साहिबा को ज़मानत होने के बावजूद, रोबकार जारी होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं और जो 9 मई के वो मुल्ज़मान जिनको फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं, उनको भी जेलों में बंद किया हुआ है और कैदे तन्हाई में रखा हुआ है और उन पे दौरान हिरासत, जबकि वो उनको सज़ा हो चुकी है, दौरान हिरासत उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर जिसे कहते हैं वो दिया जा रहा है। उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, पंखे बंद कर दिए जाते हैं और उनको गर्मी में फिर अंदर गलना सड़ना पड़ता है। और उनकी वालदा ने भी बताया और कहा यही जा रहा है कि जनाब बस माफ़ी मांगें और बाहर जाएं, ये सूरत हाल हो रही है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि ये तो हो रहा है आज फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर जो पाबंदी की वजह से आज तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की समाअत है। कल अलीमा खान साहिबा, न्याजुल्लाह न्याजी साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, वो सब के सब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, वो चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ नौबत यह आ गई है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो कि अर्जेंट मैटर होता है उसको फौरी सुना जाए। उनके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा डोगर साहब के,
تو जेल सुप्रीडेंट, जेल हुक्काम कर्नल साहब वो नहीं मान रहे, और उसके बाद हो ये रहा है कि मुनसिफ जो है वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे साइल उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। साइल ये कहते हैं कि जनाबे वाला मुनसफ़े आला, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप हिम्मत पकड़ें, आप एक ऑर्डर तो पास करें, आप ज़रा सोचें तो सही कि आपकी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती नहीं हो रही, ये आपकी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मुनसफ़े आला जो हैं वो डोगर साहब वो पिछली गली से निकल जाते हैं, पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात नहीं की, फिर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई, न्याजुल्लाह न्याजी साहब की, अलीमा खान साहबा की, तो फिर उन्होंने आज का वादा किया है और आज हियरिंग होगी। देखते हैं कि आज चूँकि मुलाकातों का दिन भी है, जुमेरात का दिन है, मंगल और जुमेरात का होता है, तो आज देखते हैं कि मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, क्योंकि आज मिन्हास साहब ने ये केस सुनना है और जस्टिस मिन्हास वही हैं जिन्होंने जो केस सुन रहे थे अहमद नूरानी के भाइयों के अगवा का सुन रहे थे और लंबी लंबी तारीखें दे रहे थे। और जस्टिस मिन्हास साहब, आपको मालूम है कि ये राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ ANF के वकील भी थे, ये भी जहन में रखना चाहिए। तो बहरहाल देखिए आज क्या होता है। दूसरी जानिब जनाब सिंध में एहतजाज चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि सिंध में दरिया सिंध के जो नहरें बनाई जा रही हैं उसके मामले पे पूरे सूबा सिंध में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चल रहा है और बाकायदा तौर पे रोड ब्लॉक किए जाते हैं, रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी जाती हैं। रिपोर्ट नहीं हो रहा, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पूरे सिंध में अनरेस्ट है और ये मसला फैलता जा रहा है। वहाँ की अपोजिशन जमातें इस पर आवाज़ें बुलंद कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नूरा कुश्ती इस बारे में कर रही है, क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत कुछ लिख कर दे चुके हैं और वो अप्रूव भी कर चुके हैं, उस इजलास में मौजूद थे, तो आज वो मुकर नहीं सकते, लिहाजा ये भी हो रहा है। फिर पंजाब में सुबह भर में किसान सरापा एहतजाज हैं, अदलिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, गंदम की फसल उनकी आ चुकी, खेतों में गल सड़ रही है, ख़रीदार कोई नहीं है और ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुआशी कत्ल है किसानों का और इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। और उसके बाद इसका जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि किसान कौन है, पाकिस्तान के अवाम हैं, 65% आबादी है उनकी, और अगर उनका मुआशी कत्ल किया जाएगा और वो भी हुकूमती सतह पे, तो उसका रद्द अमल जब आएगा तो मेरा ख्याल है ये टिक टॉकर सरकार को उस वक्त अंदाज़ा होगा कि इसकी शिद्दत और हिद्दत कितनी होती है। तो वो किसान भी सरापा एहतजाज हैं। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध और पंजाब समेत मुल्क भर में जलसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल दिया गया है। फिल वक्त 5 मई को कराची में, 8 मई को कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और 10 तारीख को यानी कि 10 मई को हैदराबाद में जलसा होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम। ये तो हो गया, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, दीगर हम ख्याल जमातें हैं और उसमें जाहिर है जब सिंध में जाएंगे तो GDA को भी वो दावत देंगे। दूसरी जानिब जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है और उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तमाम इदारे अपना फ़र्ज अदा करने में नाकाम हो चुके हैं, जान माल आबरू गैर महफूज है, ये सारे का सारा निज़ाम जाली है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है और फिल फौर इस निज़ाम का ख़ात्मा करके नए इलेक्शन का अनाउंस किया जाए, नए इलेक्शन की तारीख दी जाए और यही मसले का वाहिद हल है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुल्क भर में अपने अलग से जलसे जुलूस और मिलियन मार्च का ऐलान किया है, मिलियन मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने भी मुख्तलिफ शहरों में इस बात का एहतजाज का ऐलान किया है और उनका फिल वक्त कोई मूड नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ वो किसी किस्म का कोई हाथ मिलाना नहीं चाहते। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब मौलाना का मूड बने
اس وقت وہ آ جائیں گے. ان کو ترغیب دیتے رہیں, ملاقاتیں کرتے رہیں, انگیج رکھیں. زبردستی کسی کی نہیں ہے ظاہر ہے, اور ان کے ساتھ کم از کم ماضی والا جو ہے وہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے, اور آپ اپنی تیاری کریں, انہیں اپنی تیاری کرنے دیں. یہ ہے سچویشن, یہ ہے صورتحال. تو دیکھیے آج پھر ہمارے سپہ سالار اور جناب وزیر اعظم اور دلی سرکار کیا فیصلہ فرماتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.